everyone, welcome back to my channel Gemini on a Mission. Today is Thursday and the sun is out. As you can see, the weather is so pretty. In the morning, we had windy and chilly weather, and today it's really nice. So, the video is about 40 days experience as an international student. मैं आपको बहुत सारी जो experiences है जो मैंने experience किया है in 40 days, I'm going to share this with you. The very first thing is travel. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आके सोचते हैं कि ओ माय गॉड ट्रैवल कैसे करेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। मैं आपको थोड़ी बहुत जिस देती हूँ ऑन द ट्रैवलिंग सिस्टम हियर। फर्स्टली सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, सो यू डोंट हैव टू फील स्केयर और नर्वस। एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम जब आप ट्रैवल करोगे ट्रेन से या बस से, यू विल बी लाइक ओ माय गॉड इट वाज सो इजी, बिकॉज इट इज़ ईजी। सो आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम जब मैं ट्रैवल कर रही थी बस से, तो हमने ऑयस्टर कार्ड नहीं लिया था। वन ऑफ आवर सीनियर हैड टोल्ड अस कि फॉरेक्स कार्ड चलेगा, बट इट डिड नॉट वर्क। सो first things, when you land there after quarantine rules are changing, so keep checking the website gov.uk gov.uk to get all the updates. First thing you do is get a contactless card, नहीं तो एक oyster card। आपको oyster card कोई भी जनरल स्टोर पे भी मिल सकता है। आसपास में बहुत सारे जनरल स्टोर्स रहते हैं, उनके बोर्ड में लिखा भी होता है कि वो ऑयस्टर कार्ड का बेचते हैं, टॉप अप कराते हैं। सो गेट एन ऑयस्टर कार्ड। नाउ व्हाट इज़ एन ऑयस्टर कार्ड? ऑयस्टर कार्ड एक ट्रैवल कार्ड रहता है, लाइक अ ट्रैवल पास दैट यू कैन यूज़ फॉर ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स और बस और ट्रैम्स। इट्स वेरी हैंडी। स्टूडेंट्स के लिए इट्स अगेन वेरी हैंडी। अगर आप एरिया में रहते हो जो लंदन बॉरो में आता है, आप अपने अगेन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। अगर वो आपके एरिया में आता है तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है, विच इज़ अगेन एन एडवांटेज फॉर स्टूडेंट्स। मेरा कैसे था कि मैं ऑलमोस्ट बॉर्डर पे रहती हूँ, इवन दो देर आर डायरेक्ट बसेस फॉर माई यूनिवर्सिटी, इट डजन इंक्लूड इन द लंदन बोरो। सो येस, आई हैड टू गेट अ नॉर्मल ऑयस्टर कार्ड। आपको वीकली पासिस, मंथली पासिस भी मिलता है, सो यू कैन चेक इट आउट ऑन website. Google is very helpful for that. So yes, traveling is very easy, very organized. All you have to do is get the Oyster card, tap it when you enter the bus, and done. It automatically tells you कि आपने कहाँ travel किया है, कितना गया है, ना कितना गया है। To be honest, यहाँ पे एक कॉस्ट है 1.55, that is £1.55। आप जहाँ भी जाते हो वो एक ही उनका फिगर रहता है, तो आपका ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। Again, after you get an Oyster card, you can make an account on website। Oyster card का ऐप भी है, तो वो आपको बताएगा कि कितना टॉप अप कर सकते हो एंड कितना बाकी है एंड ऑल ऑफ दैट। I'll attach the links for you in the description below for making an account, for checking out the Oyster card, and also quarantine details. That is gov.uk. Now, let us talk about the university life. University life is again a very good experience because we have a hybrid system, online offline दोनों रखा है। Now with my university I found out that Mondays मुझे online रहता है and Thursday and Tuesday मुझे in campus रहता है। So just thrice a week I have university. बाकी then what do? We either go for visiting places or else I'll tell you all what to do. So the other part that links to the university is part-time jobs. But before I go to part-time, let me all tell you, make the most of your university days. Even if you're new, try attending college. College जाओ आप जितना हो सके, bunk less, because the more you attend, the more you network, and the more you network, you will get to know कि university में क्या होता है, because see, international student experience itself is an advantage and benefit कि आपको globally students मिलते हैं, so get to know about their culture, get to know about their places and all sorts of that. It's amazing and it's a beautiful experience. तो 40 days में इतने सारे friends तो नहीं बनाए हैं, but at least I know my classmates. I know a few things that university does. I'm trying to take part in events and programs.
Just try to be active, and I'm sure you will transform. So I might be hurrying a little क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी भी भागना है, मेरे लेक्चर्स है आज. Yes, the second part is part time. आप सोचते होगे कि a lot of parents also worry कि पार्ट टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि पार्ट टाइम लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, कैसा होगा and all of that. Then let me give you a little gist about the same. Now part time, why part time? Let me answer that question. तो again, to be honest, कि पार्ट टाइम ऐसी चीज़ है कि आप साइड बाय साइड अपने क्लासेस के साथ भी कर सकते हो ना. फर्स्ट रूल इज़ लुक एट योर टाइम टेबल. यूनिवर्सिटीज़ आपको पहले से ही टाइम टेबल बताएगी कि कितने बजे क्लासेस होते हैं, कब होते हैं, कहाँ होते हैं. सो गेट टू नो योर टाइम टेबल वेरी वेल एंड देन सी एंड देन थिंक, शुड आई डू अ पार्ट टाइम, what kind of part time do I do, or what kind of part time should I do. Now what I did is, जब मुझे यूनिवर्सिटी पता चला कि मुझे सिर्फ 2 बार यूनिवर्सिटी जाना है, थॉट कि व्हाई नॉट टेक इट पार्ट टाइम. ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ विल प्रोवाइड यू यूनिवर्सिटी जॉब्स, जैसे कि स्टूडेंट कॉलर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेशनल ब्लॉगर हो गया, या डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए नोट्स टेकिंग हो गया. द वेरियस अपॉर्चुनिटीज दैट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स यू. सो ट्राई टू ग्रैब इट. ऑब्वियसली सिलेक्शन बेसिस पे ही होता है, इंटरव्यू बेसिस पे ही होता है, बट ट्राई टू अप्लाई एट लीस्ट, बिकॉज यू नो व्हेन यू गेट सिलेक्टेड. एंड अनदर अमेजिंग पार्ट इज कि आपको यूनिवर्सिटी ट्रेन करेगी. सो फॉर योर रूल्स दे विल ट्रेन यू, दे विल पे यू, which is again an advantage. So try looking at that. Secondly, external part time. ना पहले हमें लगता है कि अरे यार यू नो वेट्रेस बनना या बार में काम करना या केयर होम में काम करना will it be really suitable. To be I keep using the word to be honest, but see, पार्ट टाइम एक एडवांटेज हो जाता है बिकॉज वो फ्लेक्सिबल रहता है. फर्स्ट थिंग, द पे इज़ नाइस. इफ़ यू वर्क इन एन रेस्टोरेंट, स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट, यू गेट टिप्स. इफ़ यू वर्क हार्ड, दे लाइक योर वर्क, you can be flexible with them. So try taking a part time. Why? Because वो अपना expense bear कर लेता है. Now at some point of time we all think कि चलो यार independent होना है, and at least grocery shopping, travel expense, exploring expense खुद से उठा ले, right? आपको भी ऐसा लगता होगा कि पेरेंट्स पे ही क्यों डिपेंड करें. रेंट तो ऑलरेडी उन लोग पे कर रहे हैं, पूरा एजुकेशन भी उन्होंने पे किया है या लोन लिया होगा हमने. तो टू टू कट डाउन योर एक्सपेंसेस, यू कैन ट्राई बैलेंसिंग इट बाय वर्किंग आउट. तो मैं भी पार्ट टाइम करती हूँ, थ्राइस अ वीक कर लेती हूँ. एंड मैं अपना ग्रोसरी शॉपिंग उससे करती हूँ, ट्रैवलिंग से करती हूँ. मेरा जो सिम कार्ड है उसका चार्ज या टॉपअप भी उससे ही करती हूँ. तो आई डोंट हैव टू रियली डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग दैट आई वांट टू डू या आई विश. कभी कभी वीकेंड्स पे ट्रीट भी दे देती हूँ अपने आप को, चीज़ केक खा लिया या टार्ट्स खा लिया या आइसक्रीम खा लिया खुद की मनी से. सो ट्राई लुकिंग फॉर पार्ट टाइम. ना हाउ टू लुक फॉर पार्ट टाइम. सॉरी आई एम रशिंग सो मच, बट आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू. तो फर्स्ट थिंग इज डोंट गो फॉर अ पार्ट टाइम विच इज़ वेरी फार और वेर यू हैव टू ट्रैवल. क्योंकि थक थक के आओगे फिर मूड ऑफ हो जाता है, बिकॉज ट्रैवल करना पड़ता है टू एंड फ्रो. इवन दो ट्रैवलिंग इज़ नॉट हेक्टिक हियर, बट स्टिल ट्राई लुकिंग आउट फॉर पार्ट टाइम विच इज़ इन योर एरिया. बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस हैं. तो हाउ डू यू आस्क फॉर अ पार्ट टाइम. यहाँ पे मुझे याद है जब मैं ऑयस्टर कार्ड ले रही थी तो वो आई थिंक वो इंडियन ही थे. वो हमें बोल रहे थे कि डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर अ पार्ट टाइम. You go to the shop and ask them. You greet them. Now, how do you ask? Now, when you're going and meeting someone, you always greet them. Good afternoon, good evening, good morning. And then ask them, are there any part-time available? Or I'm looking for a part-time. Could you guide me? I'm looking for a part-time. Could you advise me? So when you use these things, you're polite, you're humble, you're looking for a job, I'm sure they will help you out. मैंने ऐसे भी नोटिस किया कि बहुत सारे यहाँ पे इंडियंस when they meet you, they are like, did you find a part time? Do you help with part time? Do you want some help with part time? They keep asking you, they keep recommending you, so they're very helpful. Let's just take a stroll before I go to another point because the weather is so pretty.
So another thing is about making the most of your university days by balancing your work, which is your part time or any other work, following your passion and focusing on your assignments. यहाँ पे हमें फर्स्ट मंथ में ही असाइनमेंट के बारे में बता दिया था एंड ग्रुप असाइनमेंट्स इंडिविजुअल असाइनमेंट्स which you will be getting. So make sure you participate, you get to know your groups because in the end you will be working on your groups, you will be getting marks. So make sure कि आप अपने groups के साथ interact कर रहे हो as much as you can and understand the assignment. One point I would like to add here कि आपको अगर कुछ नहीं समझता है, please don't hesitate to ask. Ask student bloggers, ask student union. Every university has a union, has a student council body. Ask them, ask professors, mail them if you want, and keep communication very clear. अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते हो, communicate with them, mail them. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, mail them और talk to them. Because अगर आप जब तक पूछोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा. And then, it might be like, अरे यार, एक साल हो गया, and I couldn't make the most out of my uni days. So yes, mail them if you have any queries. And my roommate is here, Isha. I will be proceeding with my university because I have my lecture. But on my way, I'll complete this. So stay tuned. Go bhago bhago. So bus timings भी आप check कर सकते हो. There is an app for bus. Don't forget to keep a track of that. क्योंकि timings भी अलग अलग होते हैं. To search your travel, always pre-plan. One point. Pre-plan and Google. Google will help you find out कि कौन सी बस कहाँ जाती है and all of that. So keep a track of that. So yes, I'm back from my college, from my lectures, and I'm continuing where I left the video. It's almost 6:20, but it's becoming dark and cold. You can see. It's chilly. I'm on my way home. So the last point was key how to balance work, studies, personal life, work in the sense assignments and part time. So don't rush. My tip is key, जब हम लोग आते London, it'll take some time to settle down. So don't worry कि कैसा होगा क्या होगा. Everything will be like on track after a while. Like जब मैं पहले आई थी London, I was like, oh my god, वापस से routine set करना पड़ेगा according to the timetable, according to my part time. But I think in a month's time, I was able to figure out. So don't stress and don't worry about your timetable and all. Another tip would be pre-plan. तो pre-plan को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. Whether it's visiting or whether it is you visiting places, whether it is completing assignments, ignore the light. So that is what I would like to say on the part of balancing everything else. I've come to an area where I can get good light. So another point about international student is the experience is homesickness. घर की तो बहुत याद आती है क्योंकि यहाँ पे खाना भी खुद से बनाना पड़ता है, रूममेट्स के साथ डिवाइड करना पड़ता है, घर का काम क्लीनिंग करना पड़ता है, पार्ट टाइम संभालना पड़ता है, असाइनमेंट से फोकस करना पड़ता है, फिर लंदन में होके घूमना. हाउ कैन वी मिस इट तो होम सिकनेस होता है, ऐसा लगता है कि काश वापस चले जाए फ़्लाइट पकड़ के. एंड कभी कभी याद आ जाती है सडनली, रात को नींद नहीं आती है तो. बट हाउ टू कोप अप विद होम सिकनेस, वी ऑल आर जस्ट अ वीडियो कॉल अवे. सो यू कैन वीडियो कॉल योर पेरेंट्स एंड मेक सम time that you connect with them every time, at least on weekends if not on weekdays. Also another way to tackle homesickness is कि आप वो माहौल बना सकते हो, like home environment, Bollywood songs या घर की बातें डिस्कस करना अपने रूममेट्स के साथ. We have been doing that. Making Maggie or making khana in a way that reminds us of home. So yeah, that is one issue I think which will never go. Homesickness is kabhi bhi ho jati hai, but we'll all get used to it. And ending this entire video with one last area, which is confidence as an international student.
तो कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, एंग्जाइटी सब होता है यहाँ पे. इमोशनल इम्बैलेंसेस भी हो सकता है. बट अगेन, लाइक यू नो, इन द फ्यू एरियाज दैट आई सेड, आपको कोई भी ट्रबल होता है, कोई भी हेल्प चाहिए, डोंट हेजिटेट टू आस्क. द मोर यू आस्क द बेटर. आपको ऐसे लगता है कि आई डोंट फिट हियर, आई एम नॉट finding a place, I'm not comfortable, there are a lot of student areas जहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हो. Plus, like I said, you know, when you go to a university, you start making friends. You start feeling like, ठीक है, you know, सब लोग studies करने आए हैं, and you start making your groups, you start understanding. So, the last thing is, don't forget to enjoy, pre-plan a lot, research a lot. Don't hesitate to start a journey. If you're going to land here, if you're planning to land here, or even if you're not planning to study in London, this is just a video for each one of you viewing this through the lens of an international student who's here in London from Mumbai. And I hope you liked the video. अगर आपको कोई भी सवाल जवाब चाहिए, please feel free to DM me on Instagram. Yeah, feel free to put them in the description below, and I'll try my best to answer it. Thank you so much. Stay safe. Do not forget to subscribe, like, and share. And see you all in the next video. Bye bye. So 2 points that I forgot to add. I thought कि अभी मैं घर जा रही हूँ पार्ट टाइम से, तो मैं ऐड कर लूँ, आपको शेयर करूँ आपके साथ. तो पहली तो शॉपिंग के बारे में था. यहाँ पे एजडा, ऑल्डी, लिटिल, बहुत सारे ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स है जहाँ पे आपको ग्रोसरी, होमवेयर, किचनवेयर, जस्ट लाइक डी मार्ट एंड बिग बाज़ार. तो ये शॉप्स बहुत ही रीज़नेबल भी है. अगर आप पहले पहले जब लंदन आते हो, ट्राई एक्सप्लोरिंग फर्स्ट. ट्राई यू नो सीइंग कि कौन से चीज़ें हैं, कहाँ पे मिलती है, क्या क्या मिलती है, और कौन से सस्ते हैं. यू कैन कंपेयर योर रेट्स. बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि कोई कोई चीज़ें दूसरी शॉप्स में थोड़ा हाई होता है प्राइस, और कोई कोई शॉप्स में बहुत ही लो रहता है, रीज़नेबल रहता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉस्ट एंड क्वालिटी, आई फाउंड ऑल दी very reasonable, quality is very nice. तो for all the sweet tooth people, I've seen कि यहाँ पे बहुत ही reasonable prices पे desserts मिलता है, and very good quality. Another point for food stuff is when you buy, please do check the ingredients, especially if you're a vegetarian, if you don't eat egg or contain or consume milk products. So do keep checking the ingredients, even if sometimes it's written suitable for vegetarians. कुछ ऐसे भी ingredients होते हैं जो vegetarians नहीं खा पाते, like egg. Not every vegetarian consumes egg. तो आप प्लीज़ अपने इंग्रेडिएंट्स चेक करके ले सकते हो. अबाउट क्लोथिंग, मैं अब तक सिर्फ प्राइमा गई हूँ, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है प्राइमा, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे. इट्स अमेजिंग. एंड यहाँ पे सेल एंड ऑल का अब तक मैंने देखा नहीं है. आई एम वेटिंग फॉर डिसम्बर सेल, सो लेट्स सी. एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट. यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चैरिटी शॉप्स भी है. आई थिंक द ट्रेंड फॉर चैरिटी शॉप, आई वुडंट कॉल द ट्रेंड, बट I think the charity shop mission is going on since a very long time. मेरी मॉम भी जब यहाँ आती तो she used to buy from charity shops, because firstly बहुत सारे students जो एक साल के लिए आ रहे हैं, investing in clothes या कोई भी चीज़ें हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भी मिलती है. Like this jacket, if you can see, this puffer jacket, I got it from a charity shop. मुझे बहुत ही reasonable price में मिला है, and the quality is superb, so it keeps me warm. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको दूसरे क्लोथिंग स्टोर में अच्छी मिलेगी, एंड कोई कोई चीज़ें चैरिटी शॉप्स में बहुत अच्छी मिलेगी. तो गो एक्सप्लोर एंड एन्जॉय शॉपिंग इन लंदन. लास्ट पॉइंट ऑन शॉपिंग या क्लोथिंग, बहुत सारी चीज़ें आप वुलन वेयर लाओगे, थर्मल वेयर तो मत भूलना. मैं आई थिंक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो आप चीज़ें ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि अरे यार कुछ ज़्यादा ही लेके आ गए, या कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस के लिए पे कर दिया बिना मतलब का. तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. एंड द लास्ट पॉइंट आई वांटेड टू ऐड इज सेफ्टी. बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि हमें लगता है कि लंदन इज़ अ वेरी कूल प्लेस. इट इज़, and we'll be fine if we just roam around, but to be honest, we need to be safe anywhere and everywhere we go, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि we are not still used to the area, right? and यहाँ पे कोई कोई एरियाज़ है जहाँ पे
ऐसे आपको खुले शॉप्स नहीं मिलेंगे। इट विल डिपेंड, जैसे कि कोई कोई एरियाज़ में शॉप्स है, कोई कोई एरियाज़ में नहीं है, थोड़ा और वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो अंधेरा लाइक 7 o'clock हो जाता है। अभी तो अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर में तो अंधेरा जल्दी हो जाएगा, बाय 6 o'clock 6:30 या उससे भी जल्दी। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट, नॉट फॉर द अंधेरा बट फॉर विटनेसिंग की कब होता है। तो आप यहाँ पे सेफ रहना इज़ अ प्रायोरिटी। कीप रोमिंग विद द फ्रेंड्स वेर एवर यू गो, एंड ऑल्सो सेफ्टी है यहाँ पे, विच इज़ दैट कि हमें अपना ध्यान रखना पड़ता है। बट येस, आई डू मिस मुंबई अ लॉट बिकॉज लाइक वी ऑल नो आई एम फ्रॉम मुंबई एंड मुंबई नेवर स्लीप। लाइक पूरे इंडिया आई थिंक गली गली में भी शॉप्स होते ही है, लाइट होते हैं, लोग होते हैं, कार्स होते हैं। यहाँ पे कार्स होते हैं बट लोग स्पॉट होते हैं रेयरली। तो येस, सेफ्टी इज़ अ थिंग दैट वी ऑल नीड टू बी केयरफुल ऑफ, बट इट्स गोइंग गुड। सो आई होप ये 2 पॉइंट्स आप याद रखो, और या थैंक यू सो मच।